Hello friends, today I am teaching function and pointers unit 3। जैसे प्रीवियस यूनिट में यूनिट 2 में मैं अरे और स्ट्रिंग पढ़ाया था, उसी तरह ये यूनिट 3 है फंक्शन एंड पॉइंटर्स। तो आइए हम जानते हैं फंक्शन एंड पॉइंटर्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं फंक्शन। सी इनेबल्स प्रोग्राम टू ब्रेक अप प्रोग्राम इनटू सेगमेंट नोन एज फंक्शन। A function is a set of statements that take input to some specific computation and produce output. Like generally, commonly or respectfully done tasks are put together and made as a function. So that instead of writing the same code again and again for different input, we can call the function. Means next इसी में नेक्स्ट पॉइंट हम जानते हैं एवरी सी प्रोग्राम हैज एट लीस्ट one function which is main and most of the program define additional functions. These functions can be more or less independent of each others. A function is a set of instructions that are used to perform a specified task which repeat in the main program. Next function is used to provide modularity to the software by using function. We can divide complex tasks into manageable tasks. The function can also help to avoid duplicate of work. C function contains a set of instruction enclosed by curly bracket, which open curly bracket and closure curly bracket, which performs a specified operation in a C program. तो हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ फंक्शन। मीन्स फंक्शन का एडवांटेज क्या क्या है। तो फर्स्ट है रिड्यूस द साइज ऑफ द प्रोग्राम। द लेंथ ऑफ द सोर्स प्रोग्राम कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग फंक्शन एट एप्रोप्रिएट प्लेसेस। Improves reusability. Functions are used to avoid rewriting same code again and again in a program. इस प्रोग्राम में जो हम रीराइटिंग करेंगे सेम कोड रहेगा हमारा। avoid rewriting the code as function can be called many times in the program. नेक्स्ट है हमारा make program development easy. Work can be divided among project numbers. The implement can be completed in parallel. Next, program testing become easy. Each function can be tested separately and it is easy to locate and isolate a faculty function for further investigation. Okay, next हम जानते हैं increase program readability. A large program can easily be tracked when it is defined into function and to improve understandability of very large program. ये सारा मैं जो भी बता रहा हूँ ये मेरा नोट्स है, इसके बाद मैं डिटेल बाय डिटेल बताऊँगा। फंक्शन आर क्लासीफाई इंटू टू टाइप्स। ये जो फंक्शन होता है ये टू टाइप्स में विभाजित है, क्लासीफाइड है। फंक्शन फर्स्ट हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन और सेकेंड हो गया बुइल्ट इन फंक्शन। अब जानते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन, द फंक्शंस डिफाइंड बाय द यूजर अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स are called user defined function. It has to be developed by the user at the time of writing a program. These functions which are created by the programmer can be used many times. It reduces the complexity of a large program. तो हम नेक्स्ट जानते हैं इसी में यूजर डिफाइंड फंक्शन और किसे कहते हैं। तो दिस फंक्शन ब्रेक डाउन अ लार्ज प्रोग्राम इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉलर फंक्शंस। तो जानते हैं लाइब्रेरी फंक्शन और बुइल्ट इन फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन, ये तीनों के बारे में। तो देखिए यहाँ पे दिस फंक्शन इन सी आर दोज दैट आर पार्ट ऑफ सी लाइब्रेरी. These are present in any of the various header that can be included in a program. Like that, next point है they are declared in the C header files such as scanf, printf, get, put, etc. लाइक ये जितना भी है scanf, printf, get, put, ये सारा मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पे यूज होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ हो गया लाइब्रेरी फंक्शन, तो लाइब्रेरी फंक्शन हो गया हमारा printf, scanf, पावर, स्क्वायर, कोस्ट। जैसे मैंने अरे और स्ट्रिंग में मैंने आपको ये सारा के बारे में बताया था। अरे में मैं बताया था, आप प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं, ये सारा बताया था कि strl किसे कहते हैं, strcat किसे कहते हैं, tan, cos, sqrt, पावर किसे कहते हैं, सारा मैंने बताया था। और ये हेडर फाइल के बारे में भी मैं बताया था कि studio.h, math.h, stream.h, ये इसके अनुसार इसको math.h का मतलब यूज करते हैं। स्ट्रीम str मीन्स स्ट्रीम कैट, इसमें स्ट्रीम डॉट एच का यूज करेंगे। यहाँ पावर, स्क्वायर, कॉस्ट ये हमारा किस में होता है, तो मैथ में, तो मैथ डॉट एच में करेंगे। ये हो गया स्टूडियो डॉट एच, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो प्रिंटफ और स्कैनफ ये दोनों को यूज करने के बाद ही हमारा
इसको यूज करने के बाद हमारा ये स्कैन करता है। तो नेक्स्ट आइए हम देखते हैं। तो कंप्लीट लॉजिक फॉर द प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ विल बी इंक्लूडेड इन स्टूडियो डॉट एच। ये जो प्रिंट एफ और स्कैन एफ होता है, ये स्टूडियो डॉट एच जो होता है उसमें इंक्लूड होता है। हेडर फाइल इफ यू फेल टू इंक्लूड द मैथ डॉट एच, जो हेडर फाइल होता है, फेल दिस फंक्शन ऑन a work so in order to execute this predefined function we have to include the corresponding header files into the program। तो एलिमेंट ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो हम जानते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन का एलिमेंट क्या क्या होता है। तो इन ऑर्डर टू राइट एन एफिशिएंट यूजर डिफाइंड फंक्शन द प्रोग्रामर मस्ट बी फेमिलियर विथ द फॉलोइंग थ्री एलिमेंट्स। मीन्स ये जो हमारा है यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसका थ्री एलिमेंट होता है। कौन कौन? एक होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, एक होता है फंक्शन कॉल, एक होता है फंक्शन डिफिनेशन। तो हमारा ये जो फंक्शन डिक्लेरेशन होता है, ये कहाँ वर्क करती है, किस तरह से वर्क करती है, फंक्शन कॉल कहाँ किस तरह से वर्क करती है, ये फंक्शन डिफिनेशन किस तरह से वर्क करी, इसके बारे में मैं अभी आपको वन बाई वन बताता हूँ। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ये होता है हमारा प्रोटोटाइप, तो इसके बारे में हम जानते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। तो देखिए हम सबसे पहले जानते हैं ऑल आइडेंटिफायर्स in C need to be declared before they are used। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है फॉर फंक्शन द डिक्लेरेशन नीड टू बी बिफोर द फर्स्ट कॉल ऑफ द फंक्शन। Like the normal variable in a program, the function can also be declared before they are defined and invoked। Next point है the function declaration tell the compiler about the number of parameter a function takes data types of parameter and return type of function। ये जो होता है इसमें एक डाटा टाइप का पैरामीटर होता है, एक रिटर्न टाइप का फंक्शन होता है, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखते हैं इफ द फंक्शन डिफिनेशन प्रोसेड फंक्शन कॉल देन नो नीड ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन। जब फंक्शन, तो हम आइए अब इसी का जो हमने अभी क्या पढ़ा फंक्शन डिक्लेरेशन, इसका हम सिंटेक्स देखते हैं। तो सिंटेक्स हमारा होता है रिटर्न टाइप, फंक्शन में पैरामीटर का लिस्ट होता है। रिटर्न टाइप इज द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन नेम इज द नेम ऑफ द फंक्शन, पैरामीटर लिस्ट आर द लिस्ट ऑफ पैरामीटर दिस फंक्शन कैन कन्वेंसी। ये मैं जितना भी बता रहा हूँ ये सारा मेरा खुद का नोट्स है, ये खुद से मैंने बनाया है। इसके बाद इसको बताने के बाद मैं प्रोग्राम में सारा आपको बताऊंगा। प्रीवियस क्लास में भी मैंने यही बोला था। तो नेक्स्ट करके सारा मेरा नोट्स, ये यूनिट 3 है, 4 और 5 पूरा करने के बाद मैं सिर्फ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो आइए इसका इजी एग्जांपल हो गया इंट ऐड इंट एक्स इंट वाई इंट जेड, ये हमारा हो गया एग्जांपल। जैसे पैरामीटर और आर्गुमेंट होता है आर द इनपुट गिवन टू द फंक्शन, ये फंक्शन में दिया हुआ होता है पैरामीटर और क्या आर्गुमेंट। तो आइए हम सेकंड जानते हैं फंक्शन कॉल। तो फंक्शन कॉल, ए फंक्शन कॉल इज रिटन इनसाइड द मेन फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है ए फंक्शन कॉल्स द एक्चुअली फंक्शन, a function calls the actual function। In order to use function in the program we use function call to access the function। The program or function that calls the function is referred to as calling program or calling function। नेक्स्ट हम जानते हैं ए फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड इन द लेफ्ट हैंड साइड द असाइनमेंट ऑपरेटर नेम ऑफ द वेरिएबल इन द फंक्शन डिक्लेरेशन फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डिफिनेशन में वेरी। नेक्स्ट पॉइंट है ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड बाय सिंपली स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द फंक्शन रिटर्न वैल्यू एंड पैरामीटर इफ प्रेजेंट। देखिए ये इसका सिंटेक्स हो गया हमारा फंक्शन कॉल का, फंक्शन नेम लिस्ट ऑफ पैरामीटर, एग्जांपल हो गया ऐड ए और बी, हेलो calls function that does not return a value, int value get call function that then return a value। नेक्स्ट हम जानते हैं क्या 3 में फंक्शन डिफिनेशन। तो इट इज द फर्स्ट पॉइंट हमारा है इट इज द एक्चुअल कोड फॉर द फंक्शन टू परफॉर्म ए स्पेसिफाइड टास्क। इट इज यूज्ड टू प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग एंड एस्टेब्लिशिंग द यूजर डिफाइंड फंक्शन बाय स्पेसिफाइंग ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इट कंटेन्स द स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट पॉइंट इट इज रिटन आउटसाइड द मेन फंक्शन। उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं व्हेन ए जब फंक्शन डिफाइंड मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर द फंक्शन ए फंक्शन डिफिनेशन प्रोवाइड द एक्चुअली बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो इसका हमारा सिंटेक्स देख लीजिए, सिंटेक्स हो जाएगा हमारा रिटर्न डाटा टाइप फंक्शन नेम डाटा टाइप वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 डाटा टाइप वेरिएबल 2, ये ओपन ब्रैकेट स्टेटमेंट रिटर्न वेरिएबल। एग्जाम्पल हो गया हमारा इंट ऐड इंट ए इंट बी, ये हमारा हो गया सम। तो ये सारा मैं यहाँ पे सिर्फ अपना नोट्स में मैं आपको दिखा दिया, और नेक्स्ट मैं जब प्रोग्राम करूँगा तो वन बाई जैसे अरे और स्ट्रिंग हुआ तो उसका एक वीडियो सिर्फ उसका प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होगा। प्रोग्रामिंग में वन बाई वन बताऊँगा कि इंट कहाँ से आया, सम कहाँ से आया।
तो उसी तरह ये हमारा फंक्शन और कॉल चल रहा है, तो अभी इसको हम चलने दे रहे हैं। ये सारा नोट्स बताने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। द ब्लॉक ऑफ कोड्स विच कैन परफॉर्म सम स्पेसिफाइड टास्क। तो आइए हम जानते हैं रिटर्न टाइप। इंटीजर हमारा रिटर्न टाइप, ये इंट सम, इंट ए इंट बी, तो इंट हमारा हो गया रिटर्न टाइप, ये सम हो गया फंक्शन नेम, इंट ए इंट बी हमारा हो गया पैरामीटर लिस्ट। ओके, ये ओपन करली ब्रैकेट है, ठीक। इंट सी, तो ये हमारा लोकल डिक्लेरेशन हो गया, सी इजकल टू ए प्लस बी, तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। और रिटर्न सी, ये हमारा रिटर्न स्टेटमेंट हो गया, और ये क्लोजर ब्रैकेट हो गया। तो उसी प्रकार मैं यहाँ पे देखिए कोड लिखा हुआ है, हच इंक्लूड स्टीरियो डॉट एच इंट एड इंट ए इंट बी, ओपन कर ओपन ब्रैकेट सम इजकल टू एड n1 n2, ये हमारा होता है। ये जो हमारा हच इंक्लूड स्टीरियो डॉट एच, तो आप लोग जान रहे हैं कि हाँ ये हमारा हेडर फाइल है। तो इंट एड इंट ए इंट बी, ये हमारा हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन को कॉल कर, फंक्शन डिक्लेरेशन। सम एड n1 n2, ये सम हमारा हो गया फंक्शन कॉल। इंट एड इंट ए इंट बी, ये हमारा फंक्शन, ये तीन डिफरेंट फंक्शन के बारे में मैं बताया था। जैसे 1 हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन, 2 फंक्शन कॉल, 3 फंक्शन डिफिनेशन, उसी प्रकार मैंने यहाँ पे इस तरह से आपको दर्शा दिया। अब नेक्स्ट हम जानते हैं बुइल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन। तो देखिए इसका नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट हम जानते हैं, सी लैंग्वेज प्रोवाइड बुइल्ट फंक्शन और इन ट्रांसिस फंक्शन कॉल्ड लाइब्रेरी फंक्शन। नेक्स्ट हम जानते हैं लाइब्रेरी, नेक्स्ट पॉइंट, लाइब्रेरी फंक्शन इन सी लैंग्वेज आर बुइल्ट इन फंक्शन व्हिच आर ग्रुप टुगेदर एंड प्लेस इन ए कॉमन प्लेस कॉल्ड लाइब्रेरी। Each library function in C perform a specified operation. We can make use of the library function to get the predefined output instead of writing our own code to get those outputs. These library functions are created by the person who designed and created C compiles. इसमें डिजाइन और कंपाइल जो होता है हमारा सी के द्वारा होता है, सी कंपाइल्स के से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ऑल सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन आर डिफाइंड इन हेडर फाइल्स व्हिच आर सेव एज फाइल नेम h.h। एक्चुअली फाइनली डिक्लेरेशन डिफिनेशन आर गिवन इन दिस हेडर फाइल्स। तो टाइप्स ऑफ हेडर फाइल्स, वहाँ मैंने टाइप्स जाना था, ये हेडर फाइल्स का टाइप्स कितना होता है, स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच, मैट डॉट एच, टाइम डॉट एच, सिग्नल डॉट एच। स्टूडियो डॉट एच को हम क्या कहें, परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेटर्स। कोनियो डॉट एच परफॉर्म कंसोल इनपुट एंड कंसोल आउटपुट ऑपरेटर्स। स्ट्रिंग डॉट एच परफॉर्म स्ट्रिंग मैनिपुलेशन operations. Math.h perform mathematical operations. Time.h perform function related to date and time. Signal.h perform signal heading function. तो आइए हम जानते हैं स्ट्रिंग फंक्शन किसे कहते हैं। तो देखिए स्ट्रिंग फंक्शन जो हमारा होगा, सी स्ट्रिंग्स आर नथिंग बट अरे ऑफ कैरेक्टर्स इंड विथ नल कैरेक्टर्स. These null characters indicate the end of the string. Strings are always enclosed by doubles quotation, whereas character is enclosed by single quote. तो उसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं करेक्टर कलर 4 है, जैसे RED/O, RED 1 2 3 4। जैसे यहाँ पे देखते हैं बुइल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन कंपेयर, फर्स्ट पॉइंट है हमारा कंपेयर, कॉपी, कॉन्क्रेट etc आर द बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशन. वी कैन परफॉर्म सच ऑपरेशन यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग डॉट एच. हेडर फाइल डॉट इन order to use this string function you can must include string.h in your program. तो हम जानते हैं स्ट्रिंग फंक्शन क्या क्या होता है, जैसे strcat, strcat, strcpy हमारा स्ट्रिंग फंक्शन। डिस्क्रिप्शन इसका strcat, जैसे concat string 2 at the end of the string 1. strcat appends a portion of string to other. जैसे हम यहाँ देखते हैं strcpy, तो कॉपी स्ट्रिंग 2 इंटू स्ट्रिंग 1 होता है। अब एक और हमारा है strcpy, तो इसको देखते हैं कॉपी गिवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एनी स्ट्रिंग टू अनदर. str कंपेयर रिटर्न 0 इफ स्ट्रिंग इज सेम एज स्ट्रिंग 2 रिटर्न 0, इफ स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 रिटर्न 0, इफ स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2. जैसे देखिए str यू आप डुप्लीकेट द स्ट्रिंग, strwr कन्वर्ट स्ट्रिंग टू लोअर केस, str अपर कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अपर केस, str रिवर्स द गिवन स्ट्रिंग. ये सारा हमारा क्या था, स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग था. जैसे देखिए बुइल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन का डिस्क्रिप्शन था और स्ट्रिंग फंक्शन था. तो आइए अब हम जानते हैं मैथ फंक्शन. तो अब हम लोग जानते हैं मैथ फंक्शन.
तो देखिए मैथ फंक्शन किसे कहते हैं पहले ये जानते हैं। तो इट सपोर्ट ऑल दी मैथमेटिकल फंक्शन इन सी लैंग्वेज। दी math.h header file contains various method for performing mathematical operations such as SQRT, पावर सेल, फ्लोर etc। तो अब हम जानते हैं कि ये मैथ फंक्शन जो मैं बताया तो ये हमारा राउंड कोस्ट मैथ फंक्शन है, ये हमारा डिफिनेशन हो गया। तो जैसे हम देखिए थोड़ा इसको जूम को कम करते हैं। देखिए ये मैथ फंक्शन जो हमारा हुआ और ये डिफिनेशन हुआ। जैसे राउंड ये तो दिस फंक्शन रिटर्न्स द नियरेस्ट integer value of the float double long double argument passed to this function if decimal value is from 1 to 5. It returns integer value less than argument. If the value is from 6 to 9, it returns integer value greater than argument. जैसे इजी है हमारा 7.2 इक्वल टू 7, 7.8 इक्वल टू 8। यहाँ ये साइन यूज टू कैलकुलेट दी साइन वैल्यू, कॉस यूज टू कैलकुलेट दी कोसाइन वैल्यू, tan used to calculate the tangent value, sin h used to calculate hyperbolic sine, cos h ये जैसे आप लोग ये मैथ में भी पढ़े होंगे तो उसी प्रकार मैथ से ही बन के हमारा ये प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुआ। जैसे cos h used to calculate the cosine, जैसे cos का आप लोग मान पढ़े थे, cos 30 का मान, sin 30 का मान, sin 45 का मान कितना होता है, ये सारा हम लोग मैथ में पढ़े थे। उसी तरह इसमें इसका यूज है। जैसे tan h used to calculate the tangent, exp used to calculate exponential e to the x power, log used to calculate natural logarithm, log 10 used to calculate base 10 logarithm, sqrt find the square root of the argument passed to this function, power ये power of the given number is the power a comma b power 3 comma 2 minus 3 is equal to 3 का power is equal to 9। तो ये हमारा क्या था, फंक्शन और पॉइंटर। ये सारा हम लोग पढ़ लिया। हमारा ये यूनिट 3 कंप्लीट। आइए हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए हमारा यूनिट 3 क्या था, फंक्शन एंड पॉइंटर्स, और हम लोग फंक्शन और पॉइंटर पढ़ लिए। ये सारा तो पढ़ लिए बट अभी हम लोग को ये जानना जरूरी है, ये सारा नोट्स हम लोग पढ़े लेकिन हम लोग को अभी प्रोग्रामिंग के बारे में जानना जरूरी है। तो अभी तक इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी नेक्स्ट ये हमारा 3 हुआ है और 2 चैप्टर है, 4 और 5, ये दोनों पढ़ाने के बाद मैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो अभी तक यहीं तक, जय हिंद, थैंक यू।